whether the playground is available or not. If no, then whether land is available for developing playground or not. Then details of computer, total number of computers available for teaching and learning. Out of these total, how many are functional? You know what is functional computer? It should be working, then it is a functional computer. Does the school have computer-aided learning, CAL? Whether yes, no, or yes or not functional. Whether medical checkup of students conducted last year, last academic year in the school was there or not. If yes, then how many number of times the medical checkup was conducted during the last academic year? This is a new question which has been added into the direct data capture format for the year 2014-15. Whether ramps for disabled children are there or not. Whether ramp is required or not. There are schools which are there are classrooms which are accessible and are at the floor level, at the ground level, length level, so which does not require any ramp to reach to the school, reach to the class. Then if yes, whether ramps are available. If yes, whether the ramps are available. If ramps are available, then whether the handrails are available for the ramps or not. Question number 17 to 20 are for secondary and higher secondary. The facility related. Details of attached hostel facility is there. Whether the boys hostel is there, girls hostel is there or not. If yes, then how many number of boys and girls are residing in the school. Then some facilities, working facilities, availability of room for headmasters, separate room for girls, common room for girls, separate room for teachers, ICT lab, computer room, co-curricular activity, library room. Similarly, we had added science lab for secondary is available or not, mathematics lab is available or not, social science lab is available or not, pre-vocational lab is available or not. Then these are for secondary. But the next question number 19 is only for higher secondary. Whether physics lab, chemistry lab, biology lab, computer lab, mathematics lab, language lab, geography lab, home science lab, psychology lab is available or not, separate room. And if yes, then what is the condition of that lab? After that, we are asking for audio-visual equipment, LCD, projector, fire extinguisher, internet connection, rainwater harvesting, science kit, math kit, and a new variable, local area network, and printer is available or not in the school. Mid-day meal related information is only for government and government-aided schools, but nowadays, almost the other schools which are not managed by government or government aided, those are also providing MDM. So here we are only asking for government and government aided schools, what is the status of MDM, whether it is not applicable or whether it is not provided, it is provided and prepared in the school premises, or whether it is provided but not prepared in the school premises. In that case, you have to specify if the school is providing MDM and it is prepared in the school premises, then the status of the kitchen shed you have to specify. If it is not prepared in the school but MDM is provided, then you have to provide the source of MDM. Who is providing the MDM? Whether the nearby school is providing the MDM, or NGO is providing the MDM, or self-help group, or PTA or Mother Teacher Association, or Gram Panchayat, or central kitchen is there in the state, which where the MDM is prepared and provided to the school. Then in the teacher's detail, all the variables are same except only one variable which has been added at the end, and that is whether the teacher is trained in teaching computers and whether the teacher is trained in use of computer and teaching through computer. This is a new variable which has been added. That means you have to clearly specify in yes or no that whether the teacher which you are listing here are trained in use of computers and in teaching through computers. In this teacher's detail, yeah. ये हम वेरिएबल में लेते ही थे हर साल, इस साल इसमें ऐड हो गया तो so now this has been added for the complete all the states and all the schools, all the teachers. Previously some schools might be taking. Mobile number also is a variable which most of the states are taking,
But now we have not made it mandatory in the national data capture format. It is better if you are capturing mobile number, it is good. The data is stored in the database. Other than teachers detail, new admissions in grade 1, this is same as it was in the previous year. New admissions in grade 1. Enrollment in current academic session by social category, starting from pre-primary to class 12, gender-wise, social category-wise. How many number of boys and girls are there in class 1, 2, 3 up to 12 who are in general category, who are in SC category, ST category or OBC? Out of this total, out of total of general SC, ST, OBC, how many are in Muslim category? How many are Christians, Sikh, Buddhist, Parsi, Jain or others? These are type of minorities specified at the national level, religious group, and we are capturing the information here. This enrollment by social category is the mandatory table, and this information is to be provided very authentically in the data capture format, because this is the main source of information for calculating enrollments. Now, similar information of the enrollment in the current academic session by enrollment by age, but not by social category. All children's, class-wise, gender-wise, age-wise. How many boys and girls are there who are of less than 5 age or in the age group of 5, 6, 7, 8, 9 up to 12 in the class 1, up to 13 in class 2, and similarly in other classes. Similar information of enrollment in current academic session by medium of instruction. In medium of instruction, then we have to specify class-wise, gender-wise, medium of instruction-wise. Total enrollment. Then you have to specify repeaters in current academic session by social category, by class, by gender. जैसे हमने ऊपर enrollment बताया है, इसी तरह enrollment में से current year में total repeaters कितने हैं वो बताना है. Repeaters are not necessarily due to failures. These are not necessarily failures. These may be, repeaters may be due to long absenteeism or any other reason. So repeaters are still there in the system. Then facilities for primary students, primary classes and upper primary classes by social category. How many boys and girls receive free textbook and free uniform in general category, SC category, ST category, OBC category. After that, a new, or we can say a renewed table, which was 4 or 5 years back already in DICE, examination result in the last academic year. How many general boys, girls, SC boys, girls, ST boys, girls, OBC boys, girls at the terminal grade in class 5 and class 8. How many boys and girls were there at the end of previous academic session? How many appeared in the exam? Out of the appeared, how many passed? And out of passed, how many passed with more than 60%? More than 60 does not mean that 61%. We should include 60 also. How many passed with 60 or more than 60%? Because 60% is also considered at first division. So how many number of students who appeared and passed, out of those passed, how many passed with more than or equal to 60% marks? This is a new table again inserted into the data capture format. Children with special need. Children with special need again class-wise, gender-wise, type of impairment-wise. How many boys and girls? How many boys and girls are visually impaired, complete blindness, low vision, hearing impairment, speech impairment, locomotor impairment. Locomotor means impairment or disability in moving.
mental retardation, learning disability, cerebral palsy, autism and multiple disability. These disabilities are already listed and these are very well known. Each and every student who is having any kind of disability are having these kind of certificates with them. The headmaster sir who is entering the information into the data capture format can see the certificate, disability certificate, and then only they can enter this kind of information. In the last academic year, how many number of CWSN were provided the facility, CWSN facility like braille books, braille kit, low vision kit, hearing aid, braces, crutches, wheelchair, tricycle, all calipers. After that, now up to this part, the data capture format of the variables related with elementary level are completed. Now all the variables which are there now starting from table M are only for secondary and higher secondary classes. Availability of stream, art stream, science streams, commercial, vocational and other streams are available or not. If it is available, then enrollment and repeaters by class, by gender, by social category, by stream. For class 11th and 12th, enrollment and repeaters. Then after that, examination result by social category, by gender, how many appeared in class 10, how many passed, with what range of marks. Similarly for class 2, by stream, how many appeared and passed, and how many passed with what percentage of marks. Receipt and funds of RMS, receipt and funds made by the school under RMSC. On the second page we had seen in the question number 33 or 34, we are collecting the fund information for SSA. Here it is only for RMSC. Then last table of the data capture format is number of non-teaching. In the first page, second page, and in the teacher's detail we had seen the information for in-service, for the in-position teachers. These are non-teaching staff and administrative and support staff. How many accountants are sanctioned and in position, how many library assistant, how many UDC, LDC, how many PMs or MTS. MTS means multitasking staff, or how many night watchmen are sanctioned and in position in the school. This data capture format is to be correctly filled in by the headmaster or respondent nominated by the headmaster of the school. And after filling, this is to be handed over to the CRC coordinator. CRC coordinator is responsible for validating each and every variable in the data capture format, and then only he or she should pass on the data capture format to the point where the data entry is done. If the data entry is done at the cluster level, then the CRC coordinator can make the MIS person to do the data entry from the data capture format, or not. If the data entry is done at the block level, then the headmaster, then the CRC coordinator can pass on the data capture format, filled in data capture format in the bundles to the block level. This is what we had this year in the data capture format 2014-15. We can now take some of the questions from participants who are listening to us or who are viewing us. There is a Gujarat team and there are others also who can ask the questions if there is any. Otherwise, we can request the in-house participants who can ask some questions if the FAR team is not asking any question. Asif or any other state who is interested to ask any question related with the data capture format, you can ask now. Sir, देखिए रिजल्ट का है एग्जामिनेशन रिजल्ट का, जिसमें कक्षा 4 और 5 है और 7 और 8 है, 6 नहीं है, तो उसका क्या मतलब है? मैंने अभी बताया था जब हम एग्जामिनेशन रिजल्ट जो हमने नया सेक्शन ऐड किया उसमें हम बात कर रहे थे, जब आप देखोगे वहां पे हमने कहा टर्मिनल ग्रेड्स। टर्मिनल ग्रेड होता है अगर प्राइमरी एजुकेशन साइकिल है और आपके यहाँ पे अगर एजुकेशन साइकिल 1 to 5 है प्राइमरी, तो प्राइमरी की कट ऑफ क्लास है 5। 5th के बाद बच्चा 6th में जाता है, दैट मीन्स ही और शी द चिल्ड्रन इज मूविंग टू अपर प्राइमरी, एक स्टेज कंप्लीट हो जाती है।
stage is the cut-off level. That cut-off level is either 5 or class 4 at the primary level. अपर प्राइमरी लेवल पे क्लास 8 या क्लास 7. क्लास 7 कहाँ पे होती है, क्लास 4 कहाँ पे होती है? कुछ स्टेट्स में जहाँ पे अभी भी आरटी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया है, वहां पे कट ऑफ क्लासेस प्राइमरी लेवल इज 1 to 4 एंड अपर प्राइमरी इज क्लास 5 to 8 या 5 to 7. तो प्राइमरी लेवल की कट ऑफ क्लास है 4 और अपर प्राइमरी की 7 उन स्टेट्स में. अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स Otherwise, in most of the states, primary level is class 5, upper primary level is class 8, secondary level, आप अगर secondary हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन की टेबल देखेंगे तो वहां पर भी हमने क्लास 10 और क्लास 12 पूछा. हमने क्लास 9 और क्लास 8 का रिजल्ट नहीं पूछा या क्लास 11 का नहीं पूछा. क्लास 10, क्लास 12, क्लास 5, क्लास 8 आर ट्रीटेड एज टर्मिनल ग्रेड, इसीलिए पूछा गया. क्वेश्चन है अपने यहाँ से इंटरनल टीम. सर ये जो न्यू वेरिएबल ऐड फोकस करो जो पूछा सर ये न्यू वेरिएबल जो ऐड हो रहे हैं, तो जब डाटा प्रिंटिंग के लिए जाएंगे तो डाटा प्रिंटिंग में वो वेरिएबल क्या ब्लैंक आएंगे या कैसे आएंगे? जो नए वेरिएबल्स डेटा कैप्चर फॉर्मेट में इस साल ऐड हुए हैं उनके आगे कोई भी वैल्यू लिखी हुई नहीं आएगी. उनके आगे खाली कॉलम आएगा, वहां पे आपको वैल्यू भरनी है क्योंकि कुछ वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू है नहीं. मान लीजिए आपसे पूछा गया वेदर दिस इज अ रिलीजियस स्कूल और नॉट, यस और नो, वहां पे ब्लैंक आएगा, ना यस लिखा हुआ आएगा ना नो लिखा हुआ आएगा, ब्लैंक आएगा. वो हेडमास्टर साहब को भरना है, जो रिस्पॉन्डेंट है वो भरेगा. वर्किंग एट शिफ्ट स्कूल, तो दोनों स्कूल शिफ्ट स्कूल्स के लिए बोलेंगे. क्या पूछा? इफ टू स्कूल्स आर ट्रीटिंग एज शिफ्ट स्कूल्स, तो क्या दोनों उन्हीं शिफ्ट स्कूल्स के लिए यस बोलेंगे? हाँ जी, दोनों स्कूल शिफ्ट स्कूल के लिए यस बोलेंगे. और पता कैसे चलेगा कि दोनों स्कूल एक ही? यूनिक कोड से, जो आपकी बात है. अदरवाइज वी आर हैविंग 2 सेपरेट स्कूल कोड्स और दोनों क्या है शिफ्ट स्कूल है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि दोनों एक है? यूनिक कोड से. क्वेश्चन नंबर 26 में स्कूल रेजिडेंशियल. रोहित भाई इधर देख. 26 में क्या? ये रेजिडेंशियल स्कूल है या नहीं, इसमें स्कूल कैटेगरी के अकॉर्डिंगली इसको फिल करना है या कैसे? रेजिडेंशियल के लिए, रेजिडेंशियल में वी आर हैविंग 4 ऑप्शंस. इफ द स्कूल इज प्राइमरी ओनली, तो प्राइमरी का ही सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा. वहां पे अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी प्रिंट नहीं होगा. इफ द स्कूल इज सेकेंडरी ओनली, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा वेदर द स्कूल इज रेजिडेंशियल. इफ यस, देन सेकेंडरी में आपको बताना है कि ये किस तरह का रेजिडेंशियल स्कूल है. ऑप्शन विल बी प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द स्कूल कैटेगरी. अगर सर मेरा एक नया स्कूल है सर, और मेरे पास 11 डिजिट का कोड नहीं है, तो वो सर कोड कैसे जनरेट होगा? देखिए, हमने स्टार्टिंग में प्रोफेसर मेहता ने भी कहा, मैंने भी बार बार इस बात पे फोकस किया था कि जब आप डेटा कैप्चर फॉर्मेट प्रिंट करेंगे, तो डेटा कैप्चर फॉर्मेट प्रिंट करने से पहले आपको मास्टर लिस्ट क्रिएट करनी है स्कूल की. स्कूल की मास्टर लिस्ट क्या होती है? जितने नए स्कूल्स खुले आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके ब्लॉक में, आपके एरिया में, वो आपको लिस्ट कहां से मिलेगी? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस से मिलती है. जितने नए स्कूल्स खुले हैं वो नए स्कूल्स की लिस्ट आप डाइस में पहले क्रिएट करोगे, उसका एक कोड क्रिएट होगा. जब वो कोड क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आप प्रिंटिंग करोगे. जब प्रिंटिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली जो नया कोड क्रिएट हुआ है वो उसमें आपको लिस्ट में जो आपने कोड क्रिएट किया वो आपको डेटा कैप्चर फॉर्मेट में प्रिंट होकर मिलेगा. अभी जब हम ब्रेक किए थे तो मेरे से ये पूछा था कि क्या हम अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल का भी आंकड़ा इकट्ठा करना है क्या? दोस्तों, ऐसा है जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट लग गया, उसके बाद में 3 सालों के 3 वर्षों के अंदर अंदर ये अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल सभी या तो रिकॉग्नाइज हो जाने चाहिए थे या बंद कर दिए जाने चाहिए थे.
आपके क्षेत्र में अभी भी अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल अगर चल रहे हैं तो उन सब का आंकड़ा भी हमें डाइस 214-15 प्रपत्र के बाद बनवाना है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अभी भी हिंदुस्तान की बहुत सी जगहों पे ये चल रहे हैं और अगर आपके यहाँ पे भी है तो निश्चित रूप से हमारा प्रपत्र जो पिछली वर्ष कवर हो गए थे उनके पास तो पहुंचा नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी अगर और जानकारी अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल, अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसा या रिकॉग्नाइज्ड मदरसा की अगर हमारे पास में आती है तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी हमें इकट्ठी करवानी सर हाँ हाँ जी पूछिए। हाँ सर, एक क्वेश्चन है। जो पुराने साल 1 से 12 से स्कूल थे हाँ और मैनेजमेंट 3 थे, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि तीनों को अलग अलग कर रहे हैं। तीन तो स्कूल प्री बन में नहीं 3 स्कूल हो जाएंगे, सही बात है, और जब डीसीएफ ट्रेनिंग करेंगे तो जो 2 अलग स्कूल हुए उनका भी डेटा आएगा। डेटा आएगा। देखिए हमने जब स्टार्टिंग में जब डेटा कैप्चर फॉर्मेट पे डिस्कशन शुरू किया उससे पहले एक चीज बोली थी जिसपे शायद आप ध्यान नहीं दे पाए उस टाइम। उस पे डेटा ऐसा उस पे सुनिए बनी, हमने कहा था जब आप स्प्लिट स्कूल का एक ऑप्शन डाइस में यूज करोगे प्रिंटिंग करने से पहले, स्प्लिट स्कूल, तो जो स्कूल की बात आप कर रहे हैं जैसे एक स्कूल 1 से 12 था उसमें तीनों मैनेजमेंट अलग अलग थी, डेटा सेम डेटा विल बी कॉपीड इनटू 2 न्यू स्कूल्स और दोनों का अलग अलग नया कोड क्रिएट हो जाएगा। आपका वही डेटा एज इट इज पूरा प्रिंट होगा तीनों में, तीनों डेटा कैप्चर फॉर्मेट में, बट तीनों में कोड अलग अलग होगा और तीनों की मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट थी, एलिमेंट्री लेवल की जो मैनेजमेंट थी वो एलिमेंट्री वाले डीसीएम में प्रिंट होगी, जो सेकेंडरी की मैनेजमेंट आपने पिछले साल बताई थी वो मैनेजमेंट प्रिंट होगी, जो हायर सेकेंडरी की मैनेजमेंट बताई थी वो मैनेजमेंट प्रिंट होगी। डेटा आपका पूरा सेफ रहेगा। जब आप स्प्लिट करोगे ओनली स्कूल कोड इज क्रिएटेड, डेटा इज देयर। एक स्कूल विल बी कन्वर्टेड इनटू 3 स्कूल्स। एक स्कूल कोड तो जो पिछले साल का वही रहेगा एलिमेंट्री का, सेकेंडरी के लिए नया कोड बन जाएगा, हायर सेकेंडरी के लिए नया कोड बन जाएगा, डेटा सेम रहेगा। लेकिन हेडमास्टर साहब को अच्छी तरह से बताना है, ये एक ही स्कूल हो गई है, फैसिलिटी तो वही है जो पिछले साल दी थी, लेकिन इस बार उनको बताना है कि वो अच्छी तरह से देख लें, जो छपी हुई जानकारी आएगी उसको भी देख लें और उसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो उसको चेंज करके और गोल लाल सही से गोला करें। हाँ जी पूछिए। हमारे स्कूल के एक स्कूल है 1 to 12 की है, उसमें स्टैंडर्ड 1 to 5 का मैनेजमेंट 5 है, नॉन ग्रेजुएट स्कूल, और 9 to 10 का ग्रेजुएट स्कूल और 11 to 12 का नॉन ग्रेजुएट स्कूल। तो कितनी स्कूल हो गई? 3 नहीं, इसमें 3 मैनेजमेंट अलग अलग है कि 2 मैनेजमेंट अलग अलग है? और बीच वाला 9 to 10 का ग्रेजुएट स्कूल, 1 to 5 का नॉन ग्रेजुएट है। 1 to 5 नहीं होता है। देखिए गाइस में अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट 1 to 8 की एक मैनेजमेंट होती है गाइस में, 1 to 5 और 6 to 8 अलग अलग नहीं है। 1 to 8 इज ट्रीटेड एज एलिमेंट्री, 1 to 8 नॉन ग्रेजुएट स्कूल, 1 to 8 नॉन ग्रांटेड है आपके हिसाब से, ठीक है, और 9 to 12 ग्रेजुएट स्कूल, 9 to 12 9 to 10 ग्रांटेड है, ठीक है, और 11 12 नॉन ग्रेजुएट। हाँ तो 3 स्कूल्स बनेगी। एलिमेंट्री का एक अलग बनेगा 1 to 8 का, एक 9 to 10 का अलग बनेगा और 11 12 अलग बनेगा। अगर देखिए इसी में अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 to 8 की मैनेजमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और 9 to 12 की मैनेजमेंट है लोकल बॉडी। मान लीजिए 1 to 8 इज डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, 9 to 12 इज लोकल बॉडी, तो ये 2 में स्प्लिट होगा क्योंकि 9 10 और 11 12 दोनों की मैनेजमेंट है, वो एक स्कूल क्रिएट होगा और 1 to 8 एक क्रिएट होगा, 2 स्कूल क्रिएट होंगे। लेकिन अगर 1 to 8 डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, 9 10 प्राइवेट एडेड है, 11 12 प्राइवेट अनएडेड है, तो 3 स्कूल क्रिएट होंगे, 3 कोड क्रिएट होंगे। ये कंसेप्ट। सो
इसमें हाँ जी, इसमें एक क्वेश्चन है, स्कूल का नाम तो एक ही है, हाँ, लेकिन मैनेजमेंट अलग अलग है। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कॉलम पर जो 23 है क्या क्या है? 23 में क्या है क्वेश्चन? नहीं, अपग्रेडेशन तो अलग कंसेप्ट है ना, बिल्कुल ही। अपग्रेडेशन तो वो होता है कि अगर मान लीजिए एक बार एक स्कूल बना था, सबसे पहले जब ये बना था तो 1 to 8 था, उसके बाद ये अपग्रेड हो गया 1 to 10 में, फिर वो अपग्रेड हो गया 1 to 12 में। तो जो उनके अपग्रेडेशन है वो ईयर तो आप लिखोगे, वो है स्कूल का अलग। हाँ, लेकिन देखिए ना, अब जो 11, 12 का स्कूल जो अलग हुआ वो अपग्रेड तो हुआ था, उसके आगे पीछे उसके कोड तो लगा हुआ है, यूनिक कोड। जो यूनिक कोड जनरेट हुआ वो तीनों में एक ही रहेगा, तीनों में यूनिक कोड एक रहेगा, लेकिन स्कूल कोड तीनों का अलग हो गया। उस यूनिक कोड से हमें पता चलेगा कि ये एक ही स्कूल है, लेकिन 3 मैनेजमेंट की वजह से स्प्लिट हो रखा है। हालांकि मैंने बहुत सारे स्टेट्स में देखा भी है, डेटाबेस में बहुत कम ऐसे स्कूल्स हैं जहां पे मल्टीपल मैनेजमेंट है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में 2401 जो एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में एक ही स्कूल हमारी डेटाबेस में है जहां पे मल्टीपल मैनेजमेंट है, जिसका कोड 2401 से स्टार्ट होता है, कच्छ। उसमें एक ही स्कूल है हमारी डेटाबेस में, आपके डेटा में, जहां पे मल्टीपल मैनेजमेंट है। आप अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज लॉगिन करके अपने अपने डेटा में देखेंगे तो एक एक दो स्कूल है जहां पे इस तरह के स्कूल है जहां पे मल्टीपल मैनेजमेंट है। अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स इन इंडिया, देयर इज ओनली 1 मैनेजमेंट इन अ स्टूडेंट। अब की बार 2014-15 में यूज करने वाले हैं, उसमें और डाइस डेटा कैप्चर फॉर्मेट 2013-14 में कुछ माइनर चेंजेस किए गए हैं, कुछ नए वेरिएबल्स जोड़े गए हैं। वो वेरिएबल्स की डिस्क्रिप्शन, जब हम लोग पूरे डेटा कैप्चर फॉर्मेट की डिस्क्रिप्शन फर्स्ट वेरिएबल से लेके सीक्वेंस वाइज जब आखिर तक जाएंगे, उसमें जहां जहां पे जिस सेक्शन में हमने वो वेरिएबल्स को ऐड किया है, उसको उसी टाइम पे हम उसकी डिस्क्रिप्शन भी बता देंगे। डाइस डेटा कैप्चर फॉर्मेट आप लोग जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके पास डाइस डेटा कैप्चर फॉर्मेट की प्रिंटिंग आप सॉफ्टवेयर से ही करोगे। हर साल की तरह आप डेटा कैप्चर फॉर्मेट जब आप प्रिंट करोगे तो प्रिंट करने के लिए रीजनल लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर से डीसीएफ प्रिंटिंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप महाराष्ट्र में प्रिंट करते हैं, महाराष्ट्र स्टेट के लिए प्रिंट करते हैं, तो डेटा कैप्चर फॉर्मेट मराठी में प्रिंट होता है। यूपी में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और उत्तरांचल में डेटा कैप्चर फॉर्मेट सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हिंदी में प्रिंट होता है। गुजरात में गुजराती में प्रिंट होता है। और इनके अलावा बहुत सारे स्टेट्स में रीजनल लैंग्वेज में प्रिंट होने के साथ साथ बाकी स्टेट्स में सॉफ्टवेयर के थ्रू इंग्लिश में प्रिंट होता है। सॉफ्टवेयर में प्रोविजन दिया गया है कि आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। जो सॉफ्टवेयर के थ्रू जो प्रिंटिंग होगी, चाहे आप मराठी में करो, गुजराती में करो, हिंदी में करो, इंग्लिश में करो और कन्नड़ में भी कर सकते हो। ये जो डेटा कैप्चर फॉर्मेट आपके पास सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रिंट होगा 2014-15 के लिए, उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पेजेस कहने का मतलब है कि पेज नंबर 1 से लेके जहाँ पे स्कूल कोड, स्कूल नेम, स्कूल की लोकेशन, इन सब चीजों के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में दिया गया है, वहां से लेके और टीचर सेक्शन तक, यहाँ पे टीचर्स की कंप्लीट प्रोफाइल दी जाती है, वहां तक हर एक वेरिएबल में इंफॉर्मेशन पहले से भरी होगी। इंफॉर्मेशन पहले से भरी इसलिए होगी क्योंकि आप 2013-14 का डेटा यूज करके 2014-15 का डेटा जनरेट कर लेंगे और फिर उसके बाद डेटा कैप्चर फॉर्मेट प्रिंट करेंगे। डेटा कैप्चर फॉर्मेट प्रिंट करने के लिए 2014-15 में कुछ स्टेट्स के लिए डिफरेंसेस होगा, जहां पे आप अब की बार या तो स्टेट बाइफरकेट हुआ या स्टेट में कोई एक डिस्ट्रिक्ट बाइफरकेट हुआ या डिस्ट्रिक्ट में कोई एक ब्लॉक एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला गया या एक स्कूल
एक विलेज से दूसरे विलेज में, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में चला गया। अगर इस तरह की कुछ डेटा में चेंजेस हैं तो डेटा कैप्चर फॉर्मेट प्रिंट करने से पहले आप वो सारे चेंजेस कर लेंगे। इन सब चेंजेस को हम मास्टर सेटअप बोलते हैं, मास्टर चेंजेस। मास्टर चेंजेस में आप, जैसे सर ने पहले बताया पहले सेशन में, कि आप जितने भी नए स्कूल खुले हैं 30 सितंबर 2013 से लेकर 30 सितंबर 2014 तक आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने नए स्कूल खुले हैं, जितने एग्जिस्टिंग स्कूल्स बंद हो गए हैं, या अगर कोई स्कूल मर्ज हो गया तो वो स्कूल्स की वो जो सेटिंग्स है वो आपको पहले करनी है सॉफ्टवेयर में, उसके बाद ही आप डेटा कैप्चर फॉर्मेट प्रिंट करोगे। जब हम सॉफ्टवेयर डिस्कशन पे आएंगे, जब हम सॉफ्टवेयर की प्रेजेंटेशन पे आएंगे, तब आपको ये भी बताया जाएगा कि अगर आपको एक स्कूल एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में मूव करना है तो वो कैसे करना है, अगर एक ब्लॉक एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मूव करना है, दैट इज ऑल्सो नाउ पॉसिबल इन द सॉफ्टवेयर, बट एट द स्टेट लेवल। अब आप सॉफ्टवेयर में, डाइस सॉफ्टवेयर में इस तरह के प्रोविजन किए गए हैं कि आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी स्कूल को मूव कर सकते हो, लेकिन ये काम एक स्टेट लेवल पे ही हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ही डिस्ट्रिक्ट का डेटा होता है। अगर इस तरह का कोई केस है जहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में स्कूल मूव हुआ है, वो तभी होता है अगर एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट बाइफरकेट हुआ और कोई नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया। जिस तरह जैसे गुजरात में या जम्मू एंड कश्मीर में या और किसी राज्य में अगर इस तरह से बाइफरकेशन हुई है तो उनके लिए उस सॉफ्टवेयर में वो ऑप्शन बहुत काम आएगी, और उस ऑप्शन के बाद ही आप डेटा कैप्चर फॉर्मेट प्रिंट करोगे। ये मेजर चेंज है जो सॉफ्टवेयर लेवल पे और डीसीए प्रिंटिंग से पहले का काम है। इसके बाद एक और मेजर डिफरेंस जो 2013-14 और 2014-15 के डेटा कैप्चर फॉर्मेट में है, वो है कि 2013-14 में जो डेटा कैप्चर फॉर्मेट था उसमें हर स्कूल के लिए 3 मैनेजमेंट और 3 स्कूल टाइप का प्रोविजन किया गया। एलिमेंट्री स्कूल की मैनेजमेंट, उसी स्कूल के सेकेंडरी सेक्शन की मैनेजमेंट और हायर सेकेंडरी सेक्शन की मैनेजमेंट। लेकिन ये पिछले 2-3 साल से इस तरह से चल रहा था, लेकिन जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें आ रही थी। MHRD लेवल पे एक डेफिनेशन तैयार की गई है यूनिक कंपोजिट स्कूल के बारे में, क्योंकि ये दिक्कत सिर्फ कंपोजिट स्कूल में आती थी। कंपोजिट स्कूल का मतलब होता है जहां पर एलिमेंट्री के साथ सेकेंडरी सेक्शंस भी हो, या एलिमेंट्री के साथ सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी सेक्शंस तीनों हो, या सेकेंडरी के साथ हायर सेकेंडरी सेक्शन। इसका मतलब है जहां पे एलिमेंट्री प्लस सेकेंडरी प्लस हायर सेकेंडरी, इस तरह के स्कूल्स को कंपोजिट स्कूल बोलते हैं, या एलिमेंट्री और उसके साथ सेकेंडरी, इसको भी कंपोजिट स्कूल बोलते हैं, या सेकेंडरी के साथ हायर सेकेंडरी, इसको भी कंपोजिट स्कूल बोलते हैं। लेकिन अब जो MHRD की तरफ से डायरेक्टिव्स आए हैं उसमें जो डिसीजन लिया गया है कंपोजिट स्कूल की डेफिनेशन के बारे में, उसका अगर हम ट्रांसलेशन भी लोकल अपने समझने के लिए करें तो उसका मतलब ये है कि अगर एक ही बिल्डिंग, एक ही कैंपस में विद इन अ सिंगल बाउंड्री वॉल, विद इन अ सेम कैंपस, अगर इस तरह का कोई स्कूल है जहां पे एलिमेंट्री सेक्शन भी है और सेकेंडरी सेक्शन भी है, तब भी उस पर दोनों की मैनेजमेंट एक है, तो दोनों को कंपोजिट स्कूल मानते हुए एक ही फॉर्मेट भरा जाएगा। अगर दोनों की मैनेजमेंट एक है, चाहे वो एक ही कैंपस में लेकिन अलग अलग बिल्डिंग में, तो एक ही स्कूल माना जाएगा। अगर एक ही कैंपस में होते हुए दोनों की मैनेजमेंट अलग है, अगर मान लीजिए एलिमेंट्री सेक्शन, एलिमेंट्री स्कूल जो है उसमें मान लीजिए 1 से 10 का स्कूल है, पहली से लेकर 10वीं तक, क्लास 1 to क्लास 10 का एक स्कूल है, उसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक का सेक्शन इज मैनेज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एंड जो सेकंड सेक्शन है, सेकंड सेक्शन ये जो सेकेंडरी सेक्शन है, मतलब 9वीं और 10वीं क्लास 9th and 10th, अगर वो प्राइवेट एडेड से मैनेज होती है, तो ये 2 अलग अलग स्कूल ट्रीट किए जाएंगे, चाहे वो एक ही कैंपस में। तो यहाँ पे 2 फॉर्मेट भरे जाएंगे और दोनों के लिए अलग अलग यूनिक स्कूल कोड दिया जाएगा।
ये जो काम करना है, क्योंकि पिछले साल तक हमारे पास कुछ ऐसे स्कूल रहे हैं हमारे डेटाबेसेज में जहाँ पे 1 से लेके 10 के क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के जो स्कूल्स हैं उनमें 2 मैनेजमेंट हमने डाइस में दिखाई है। हालांकि वो पूरे इंडिया में बहुत कम स्कूल है ऐसे जहाँ पे डबल मैनेजमेंट है या ट्रिपल मैनेजमेंट है, लेकिन फिर भी उन स्कूलों को भी हमें छोड़ना नहीं। तो यहाँ पे अब की बार क्या करेंगे, 2014-15 में उन स्कूल्स को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर में प्रोविजन दिया गया है कि जब आप सॉफ्टवेयर में उस ऑप्शन को चलाएंगे 2014-15 के लिए, तो आपको सॉफ्टवेयर में एक लिस्ट ऑफ स्कूल्स विद मल्टीपल मैनेजमेंट एक स्क्रीन मिलेगी, एक ऑप्शन मिलेगी, लिस्ट ऑफ स्कूल्स विद मल्टीपल मैनेजमेंट। वहां पे उन सभी स्कूलों की लिस्ट होगी जहां पे पिछले साल मतलब 2013-14 में हमने डाइस में ऐसे स्कूल्स जहां पे एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी या एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी में 2 मैनेजमेंट है, अलग अलग मैनेजमेंट है। तो सॉफ्टवेयर में ये सॉफ्टवेयर में मिलेगी आपको, मैं वो भी अभी सॉफ्टवेयर में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मिलेगी और किस तरह से आपको उनको स्प्लिट करना। उस ऑप्शन को हमने नाम दिया है स्प्लिट स्कूल्स। स्प्लिट स्कूल्स का मतलब है जहां पे भी ऐसा स्कूल था पिछले साल 2013-14 में जहां पे एलिमेंट्री की मैनेजमेंट अलग है और सेकेंडरी की मैनेजमेंट अलग है, तो वहां पे स्प्लिट स्कूल ऑप्शन को अगर आप यूज करोगे तो अपने आप उस स्कूल को 2 स्कूल्स में डिवाइड कर देगा और एक और नया कोड बना के आपको दिखा देगा। पिछला कोड ये है आपका और नया जो पार्ट बना मान लीजिए 1 से 10 तक का स्कूल था, तो इसकी जो 1 से 8वीं तक का जो सेक्शन है उसका तो वही स्कूल कोड रहेगा, लेकिन जो 9वीं और 10वीं है उसका एक नया कोड बन जाएगा और नया स्कूल बन जाएगा और वो डेटाबेस में आपको दिखा देगा कि इस स्कूल का ये कोड होगा 9th और 10th सेक्शन का और ये मैनेजमेंट उसको प्रोवाइड कर देगा। जो मैनेजमेंट आपने 2013-14 में दिखाई थी सेकेंडरी के लिए, उसकी वही मैनेजमेंट रहेगी, लेकिन डेटा कैप्चर फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली एक ही मैनेजमेंट आ जाएगी, 2 मैनेजमेंट नहीं रहेगी एक स्कूल। लेकिन अगर कोई स्कूल ऐसा था पिछले साल जहां पे क्लास 1 से लेके 10 तक या क्लास 1 से लेके 12 तक क्लासेस थी और वहां पे तीनों सेक्शंस एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी तीनों एक ही मैनेजमेंट से मैनेज हो रही थी, दैट मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के कोई भी एक मैनेजमेंट, मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एलिमेंट्री पे भी था, सेकेंडरी पे भी और हायर सेकेंडरी पे भी, उस स्कूल का नाम लिस्ट में नहीं आएगा, उसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ वही लिस्ट मिलेगी, वही स्कूल्स आपको लिस्ट में मिलेंगे जहां पे एलिमेंट्री और सेकेंडरी में या सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में या एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में अलग अलग मैनेजमेंट थी, स्कूल मैनेजमेंट, उनको आपको स्प्लिट करना है। स्प्लिट कब करना है? डेटा कैप्चर फॉर्मेट प्रिंट करने से करें, उसके बाद नहीं। उसके बाद करने का फायदा नहीं है क्योंकि आपको जो डेटा कैप्चर फॉर्मेट प्रिंट करना है उस पर डाइस का स्कूल कोड प्रिंट होगा और वो स्कूल कोड आपको तभी मिलेगा जब आप पहले स्कूल्स को स्प्लिट करोगे। अब डाइस में जब आप स्कूल्स को स्प्लिट करोगे तो 2 लेवल पे हो सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। ऑप्टिमल ये रहता है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको स्प्लिट करते, लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक स्कूल को स्प्लिट करोगे तो आप ये नहीं पता कर पाओगे डेटा में कि इसका पिछले साल स्कूल कोड क्या था, जो नया स्कूल क्रिएट होगा उसका स्कूल कोड पिछले साल क्या था। तो उसके लिए एक प्रोविजन किया है सॉफ्टवेयर में जिसको हमने नाम दिया है, वो नाम रखा है क्रिएट यूनिक स्कूल कोड फॉर द स्कूल। हमारे पास डाइस का एक कोड है पहले से, लेकिन आपने देखा होगा कि जब आप एक डिस्ट्रिक्ट को बाइफरकेट करते हो, मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट में 10 ब्लॉक थे और एक नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया, उस डिस्ट्रिक्ट में से निकाल के 2 ब्लॉक या 3 ब्लॉक या 4 ब्लॉक निकाल के और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से 2 ब्लॉक मिला के एक नया डिस्ट्रिक्ट बना देते हो, तो स्कूल कोड बदल जाता है। डाइस का जो स्कूल कोड है हमारा 11 डिजिट का, वो बदल जाता है। स्कूल कोड बदल जाने से डेटा कंपेरेबल नहीं रहता पिछले साल से, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं कि
इस स्कूल का पिछले साल क्या कोड था या इस स्कूल का 3 साल पहले क्या कोड था। मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट 2 साल पहले बाइफरकेट हुआ था, वो जो नया डिस्ट्रिक्ट बना था 2 साल पहले वो फिर बाइफरकेट होकर एक और डिस्ट्रिक्ट बन गया, तो स्कूल कोड चेंज होने के चांसेस रहते हैं। उसके लिए हमने एक नया कंसेप्ट निकाला है डाइस में। हम स्टेट लेवल पे एक नया कोड बनाएंगे, लेकिन वो कोड सॉफ्टवेयर लेवल के लिए। वो कोड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप उस कोड को यूज कर सकते हो। वो कोड स्टेट लेवल पे यूनिक रहेगा। आप एक स्कूल को एक विलेज से दूसरे विलेज में ले जाओ, एक ब्लॉक से दूसरे विलेज में ले जाओ, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ले जाओ, चाहे एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ले जाओ, लेकिन एक स्कूल एक डिस्ट्रिक्ट एक स्टेट से निकल के दूसरे स्टेट में नहीं जाता है ज्यादातर। वो तभी होता है जैसे कि एग्जांपल है कि आंध्र प्रदेश स्टेट से तेलंगाना स्टेट बन गया। उस केस में भी एक प्रोविजन किया गया है, वो सॉफ्टवेयर में जब हम प्रेजेंटेशन करेंगे तब बताऊंगा। अभी आप स्टेट लेवल पे एक ऑप्शन है इसमें सॉफ्टवेयर में, जो आप सबसे पहले वो यूज करोगे 2014-15। अभी आप क्या करोगे, सॉफ्टवेयर में लॉगिन करोगे, 2013-14 का डेटा जनरेट करोगे 2014-15 में। जनरेट करने के बाद सॉफ्टवेयर में दोबारा लॉगिन करोगे और क्रिएट यूनिक स्कूल कोड करोगे। 11 डिजिट का एक और यूनिक स्कूल कोड क्रिएट हो जाएगा स्टेट लेवल पे, लेकिन वो स्कूल कोड सिर्फ उन्हीं स्कूल्स के लिए क्रिएट होगा जिन स्कूल्स का ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट दिया गया होगा। क्योंकि अब जो हमने यूनिक स्कूल कोड बनाया, वो स्कूल कोड बनाने का वो उसकी लेंथ भी 11 डिजिट है। उसका कोडिंग पैटर्न आप एक बार सुन लीजिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन के टाइम पे सीधा प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि किस तरह से क्रिएट होगा। 11 डिजिट का जो स्कूल कोड यूनिक स्कूल कोड क्रिएट होगा, उसमें पहले 2 डिजिट स्टेट के, उसके बाद 4 डिजिट ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के। डाइस में हम ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट देते हैं हर एक स्कूल का। तो पहले 2 डिजिट स्टेट के, उसके बाद 4 डिजिट ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के, और उसके बाद 5 डिजिट का एक रनिंग सीक्वेंस नंबर। इस तरह से 11 डिजिट का एक स्कूल कोड क्रिएट होगा। ये स्कूल कोड कभी चेंज नहीं होगा। कभी चेंज नहीं होगा कहने का मतलब है, चाहे आप एक स्कूल एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ले जाओ, तो उसका स्कूल कोड जो पहले हम स्कूल कोड डायस में यूज करते हैं वो बदल जाता है, क्योंकि उसमें पहले 2 डिजिट स्टेट के, फिर 2 डिजिट डिस्ट्रिक्ट के, फिर 2 डिजिट ब्लॉक के। अगर आपने एक स्कूल एक ब्लॉक से उठा के दूसरे ब्लॉक में कर दिया तो ब्लॉक कोड चेंज हो जाएगा, तो आपका स्कूल कोड चेंज हो जाता है। लेकिन उस केस में ये जो नया स्कूल कोड क्रिएट होगा 11 डिजिट का, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो आप हमेशा 11 डिजिट वाला जो नया यूनिक स्कूल कोड होगा, इसको ट्रैक करके स्कूल्स को पिछले साल से कंपेयर कर सकते हो। इसका एक और फायदा है, एक तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो, दूसरा जब आप स्कूल स्प्लिट करोगे अब की बार, अगर आपका एक स्कूल था 1 to 12, 1 से लेकर 12 तक, ये स्कूल जब आप स्प्लिट करोगे, तीनों की मैनेजमेंट, तो स्कूल की 3 मैनेजमेंट थी अलग अलग, एलिमेंट्री का अलग, सेकेंडरी का अलग और हायर सेकेंडरी का अलग। तो कुछ लोगों का मानना है कि नंबर ऑफ स्कूल्स बढ़ जाएंगे। पिछले साल एक स्कूल था, उसमें 3 मैनेजमेंट थी, अब की बार हम उसको 3 में डिवाइड कर देंगे, एक एलिमेंट्री, एक सेकेंडरी, एक हायर सेकेंडरी। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बढ़ जाएंगे डेटाबेस में एक ही स्कूल के, विद 3 स्कूल कोड्स, लेकिन उन तीनों में यूनिक कोड एक ही रहेगा। ओके। उस एक यूनिक कोड से आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्कूल्स आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके ब्लॉक में कितने, उससे पता चल जाएगा। आप अगर स्कूल कोड, जो पहले स्कूल कोड डाइस में यूज करते हैं, अगर हम उसको कहें डाइस कोड बोलते हैं उसको, तो डाइस कोड आपसे काउंट करोगे तो आपको नंबर ऑफ स्कूल्स ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर आप यूनिक स्कूल कोड यूज करोगे नंबर ऑफ स्कूल्स काउंट करने के लिए, तो आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्कूल्स मिलेंगे जितने आपके पास आपकी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर में लॉगिन, प्रिंट पे जाने से, ये
सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सब काम आपको पहले करना है प्रिंटिंग करने से पहले। अदरवाइज डीसीएफ में अलग अलग कोड्स आएंगे, जो कोड पहले एग्जिस्ट नहीं करता होगा आपके पास, वो कोड आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले लॉगिन करने के बाद सॉफ्टवेयर में 2013-14 से लॉगिन करोगे, 2014-15 के लिए डेटा जनरेट करोगे, वापस एग्जिट करोगे, दोबारा लॉगिन करोगे सॉफ्टवेयर में, क्रिएट यूनिक स्कूल कोड करोगे स्टेट लेवल। ये पहला काम। सर ये 13-14 में करेंगे कि डेटा जनरेट करके 14-15? आप सीक्वेंस हो 13-14 से आप लॉगिन करोगे, फिर जनरेट डेटा करोगे 2014-15 के लिए, सबसे पहला काम। ठीक है। फिर वहां से एक बार एग्जिट कर जाएंगे सॉफ्टवेयर से और दोबारा लॉगिन करेंगे 2014-15 से। ठीक है। अब आप जितना काम करोगे वो 2014-15 के लिए करोगे। सबसे पहले क्रिएट स्कूल कोड, क्रिएट यूनिक स्कूल कोड। सेकेंड स्टेप स्प्लिट स्कूल्स। उसके बाद जैसा मेहता सर ने पहले बताया कि आपके यहाँ पे जितने नए स्कूल खुले उनको इनिशियलाइज करो, जो स्कूल मर्ज हो गए हैं उनको मर्ज करो, जो स्कूल क्लोज हो गए उनको क्लोज करो। ये सब मास्टर सेटअप करने के बाद आप डेटा कैप्चर फॉर्मेट प्रिंटिंग पे जाओ। अब डेटा कैप्चर फॉर्मेट प्रिंटिंग के बारे में हम लोग सॉफ्टवेयर के टाइम पे देखेंगे। अब आपका डेटा कैप्चर फॉर्मेट पे डिस्कशन जो करना है वो हम लोग देखते हैं वेरिएबल्स। कोशिश करेंगे हम लोग की सभी वेरिएबल्स पे डिस्कस ना करें, लेकिन अगर कोई ऐसा वेरिएबल होगा जो आपको लगता है कि जिस पे डिस्कस करना जरूरी है तो आप नोट कर सकते हैं, हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे। अदरवाइज जो मेजर चेंजेस है डेटा कैप्चर फॉर्मेट में उनके बारे में हम देखते हैं। अदरवाइज वी विल गो थ्रू ऑल द वेरिएबल्स इन द डेटा कैप्चर फॉर्मेट। आपको पता है कि डेटा कैप्चर फॉर्मेट 2014-15 भी स्कूल कैटेगरी के बेस पे प्रिंट होता है। स्कूल कैटेगरी, अगर एक स्कूल प्राइमरी ओनली है तो उसके लिए कुछ सेक्शंस जो सेकेंडरी से रिलेटेड होते हैं वो प्रिंट नहीं होंगे। अगर कोई सेकेंडरी ओनली स्कूल से तो एलिमेंट्री रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो प्रिंट नहीं होंगे। पर अभी जो डेटा कैप्चर फॉर्मेट स्क्रीन पे देख रहे हैं उसमें ऑल वेरिएबल्स फॉर क्लास 1 to 12 फॉर द स्कूल कैटेगरी, प्राइमरी विद अपर प्राइमरी विद सेकेंडरी विद हायर सेकेंडरी, सभी वेरिएबल्स। तो हम इन वेरिएबल्स को देखेंगे। सबसे ऊपर डाइस कोड 11 डिजिट का, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रिंट होकर आएगा। हेडमास्टर साहब को ये कोड याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कोड पता हो तो ज्यादा अच्छा है। पता हो इसलिए हम कह रहे हैं कि अच्छा है क्योंकि ये कोड यूज करके हेडमास्टर, टीचर, कोई भी पेरेंट या पब्लिक, अगर ये कोड उनको पता हो, वो लोग हमारे जितने फीचर, जितनी फैसिलिटीज, स्कूल रिपोर्ट कार्ड या एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो हम लोगों ने बनाई है, आप अपने मोबाइल पे भी अगर ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन यूज करो जो हम यूपा ने डेवलप की है, आप उस पे अगर आप ये स्कूल कोड डालो, आप डायरेक्ट अपने मोबाइल पे स्कूल रिपोर्ट कार्ड देख सकते हो, स्कूल का पूरा डेटा देख सकते हो। उसके लिए ये कोड आपको पता होना चाहिए। तो धीरे धीरे हम लोग कोशिश करते हैं कि हेडमास्टर साहब को ये स्कूल कोड याद हो जाए। वैसे तो हर एक स्कूल के बाहर जहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान या आरटीई का जो लोगो होता है, वहां पे स्कूल का कोड भी आजकल लिखा जाता है बहुत सारे स्कूल के बाहर बोर्ड में। अगर ये कोड धीरे धीरे याद करना शुरू कर दें हम लोग तो ये आगे बहुत काम आएगा। जिस तरह से पिन कोड पता होता है हम लोगों को अपने एरिया का, ऐसे हमें अपने आसपास के कुछ स्कूलों का स्कूल कोड भी पता होना चाहिए। हेडमास्टर साहब को तो कम से कम अपने स्कूल का स्कूल कोड तो पता होना चाहिए। सबसे पहले 11 डिजिट का स्कूल कोड है, उसके बाद एकेडमिक ईयर, यह भी सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रिंट होगा। ये एकेडमिक ईयर अब की बार जो प्रिंट होगा वो होगा 2013-14। उसके बाद स्कूल नेम कैपिटल लेटर्स में पूरा नाम लिखा जाएगा। अगर कोई गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है तो यहाँ पे पूरा गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल ही हेडमास्टर साहब को भरना चाहिए। हालांकि ये भी सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रिंट होकर आएगा, लेकिन अगर आप ये देखें कि सॉफ्टवेयर के थ्रू जब प्रिंट हुआ तो वहां पे GGPS लिखा है,
मान लीजिए लिखा है GGPS बालाघाट, तो हेडमास्टर साहब को GGPS को काट के वहां पे गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, जो भी पूरा नाम है, एब्रीविएशन नहीं लिखनी है, पूरा नाम लिख के तब सॉफ्टवेयर में चेंजेस हो पाएंगे। पूरा डेटा कैप्चर फॉर्मेट में वो पूरा नाम लिखना चाहिए। स्कूल इज लोकेटेड इन रूरल एरिया और अर्बन एरिया। ये स्कूल, जिस स्कूल का डेटा कैप्चर फॉर्मेट भरा जा रहा है वो रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया में वार्ड नंबर या यहाँ पे तो सिर्फ येस या नो बताया जाएगा कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया, रूरल के लिए 1 और अर्बन के लिए 2 बताया जाएगा। नोटिफाइड रूरल एरिया और अर्बन एरिया होते हैं, उसके बेस पे बताया जाता है। हैबिटेशन नेम फॉर रूरल एरिया, मोहल्ला और इक्विवेलेंट अर्बन यूनिट फॉर प्लानिंग। जो अर्बन एरियाज होते हैं वहां पे हैबिटेशन नेम नहीं होता, वहां पे या तो मोहल्ला का कोई नंबर होता है या अर्बन यूनिट का नाम बताया जाता है। हैबिटेशन नेम इज वैलिड ओनली फॉर रूरल एरियाज, तो वो हेडमास्टर साहब को देखना चाहिए। उसके बाद हम पूछते हैं डेटा कैप्चर फॉर्मेट में रूरल एरिया के लिए विलेज नेम, अगर अर्बन एरिया है तो वार्ड नंबर। अर्बन एरिया जैसे सिटीज में, जैसे दिल्ली में भी अगर हम देखेंगे तो वार्ड्स होते हैं, हर अर्बन एरिया में वार्ड्स होते हैं। वार्ड, हर एक वार्ड को एक नंबर दिया गया होता है, वो वार्ड नंबर यहाँ पे विद वार्ड का नाम, वार्ड का नाम भी होता है और नंबर भी होता है। अगर अर्बन एरिया है तो वार्ड का नंबर एंड वार्ड का नाम बताया जाए, अगर रूरल एरिया है तो विलेज का कंप्लीट नेम, विलेज का भी पूरा नाम लिखना, एब्रीविएशन में नहीं लिखना। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है पिन कोड, 6 डिजिट का वैलिड पिन कोड। ये पिन कोड यहाँ पे बताना मैंडेटरी है। अगर हेडमास्टर साहब ये पिन कोड नहीं लिखते हैं तो CRC कोऑर्डिनेटर जो डेटा कैप्चर फॉर्मेट कलेक्ट करते हैं उनको वो डेटा कैप्चर फॉर्मेट हेडमास्टर साहब को वापस दे देना चाहिए और उसमें वो स्कूल जिस पिन कोड एरिया के अंदर है वहां पे उसका वैलिड पिन कोड बताना चाहिए। पिन कोड को मैंडेटरी क्यों बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पिन कोड के बेस पे हम लोग स्कूल्स को सर्च कर सकते हैं दुनिया में कहीं भी बैठ के। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे बैठ के, हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, जिस एंड्रॉयड एप्लीकेशन में एक ऑप्शन दिया गया है कि आप पिन कोड डालिए किसी भी एरिया का, जो डाइस में कवर होते हैं स्कूल, वो उस पिन कोड के एरिया में जितने स्कूल्स आपने बताए वो स्कूल्स की लिस्ट आपके पास आपके मोबाइल पे आ जाएगी। आप किसी भी एक स्कूल पे क्लिक कीजिए, आपको उसका स्कूल को रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा। दैट मीन्स पिन कोड इज वेरी यूजफुल फॉर सर्चिंग अ पर्टिकुलर स्कूल और अ सेट ऑफ स्कूल्स। इसी तरह से पिन कोड के बेस पे आप वेबसाइट पे भी schoolreportcards.in और अलग वेबसाइट्स पे भी आप पिन कोड के थ्रू स्कूल सर्चिंग कर सकते हैं। ये 6 डिजिट का वैलिड पिन कोड देना मैंडेटरी है। इसी तरह विलेज पंचायत में अगर रूरल एरिया है तो विलेज का पंचायत का नाम बताया जाएगा, जो विलेज पंचायत है। कुछ 10 या 11 विलेजेस को मिला के एक पंचायत बनाई जाती है, तो उस पंचायत का नाम बताना। नेम ऑफ क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, यहां पे बहुत ध्यान देने वाली चीज है, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर क्या होता है। अमूमन 15 या 20 स्कूल या 25 स्कूलों का एक ग्रुप होता है। उन ग्रुप्स में से वो जो स्कूल का एक ग्रुप है उसमें से एक स्कूल को क्लस्टर रिसोर्स सेंटर बना दिया जाता है और उनके हेडमास्टर, जो 20 या 25 स्कूलों के हेडमास्टर में से वो जो स्कूल क्लस्टर रिसोर्स सेंटर बनाया गया, उस क्लस्टर रिसोर्स सेंटर के हेडमास्टर को CRC कोऑर्डिनेटर बना दिया जाता है। वो CRC कोऑर्डिनेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग करेक्ट एंड ऑथेंटिकेटेड डेटा इन द डेटा कैप्चर फॉर्मेट फ्रॉम द स्कूल। वो जो 20-25 स्कूलों का जो ग्रुप है, वहां से वो जो स्कूल हेडमास्टर साहब है, जो CRC कोऑर्डिनेटर बने, he or she is responsible for distributing the data capture format, collecting the field in data capture format, and
authenticating the data provided in the data capture format by each and every school headmaster or respondent. तो ये जो क्लस्टर रिसोर्स सेंटर का नाम है, ये क्या नाम होना चाहिए? अभी हमने कहा कि एक स्कूल को ही क्लस्टर रिसोर्स सेंटर बनाते हैं, तो क्लस्टर रिसोर्स सेंटर का नाम क्या होगा? स्कूल का नाम ही होना चाहिए। स्कूल का नाम ही होगा कि यहाँ पे है सर कि बोरिंगड़ा स्कूल है, तो बोरिंगड़ा एक क्लस्टर है, तो वही क्लस्टर का नाम ही कराएगा, पर उसका कोड अलग है पीआरसी का। हाँ, कोई बात नहीं, कोड अलग है, लेकिन अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर में एक प्रोविजन किया है, आप जब नेम ऑफ क्लस्टर लिखा है हमने यहाँ पे, तो जो नाम आएगा वो एक स्कूल का होगा, उस स्कूल का कोई कोड भी होगा डाइस में। तो डाइस में क्लस्टर इनिशियलाइजेशन का जो पार्ट है, वहां पे यू विल बी एबल टू सेलेक्ट द स्कूल नेम ओके इन दिस कॉलम। अभी क्या होता है, हमने यहां तो कह दिया कि नेम ऑफ द क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, लेकिन डाइस में हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं? आपने जो ना देखिए, स्कूल का नाम है, जैसे अभी हमने कहा फॉर एग्जांपल GGPS बालाघाट, ये क्लस्टर रिसोर्स सेंटर है, लेकिन हम यहां पे जब लिखते हैं तो हम लिख देते हैं XYZ, वैलिड नेम है XYZ, क्योंकि गाइड करना है आपने, और वो जो XYZ आपने क्लस्टर इनिशियलाइज किया, उसका क्लस्टर कोड कुछ और है, वो अलग है, वो अलग होता है। अब हम डाइस में इसको कैसे पता करें कि ये जो 25 स्कूलों का ग्रुप है, इस 25 में से कौन सा क्लस्टर रिसोर्स सेंटर है? तो वहां पे हम एक ऑप्शन दे रहे हैं सॉफ्टवेयर में, क्लस्टर इनिशियलाइजेशन के टाइम पे, वहां पे आप जाके नेम ऑफ द क्लस्टर जो आपने लिखा है, उसके साइड में स्कूल कोड सेलेक्ट कर लो कि ये कौन सा स्कूल है जो क्लस्टर रिसोर्स सेंटर बने। ठीक है, और ये पर ये क्लस्टर मास्टर में हमको ये पहले करना पड़ेगा। अरे मास्टर में बोल, ये मास्टर में बोल, ये सॉफ्टवेयर के टाइम पे भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे नाम देना जरूरी है, और नाम क्या होना चाहिए? जो स्कूल का नाम, स्कूल का नाम बस सर ये होना चाहिए नहीं, क्योंकि अभी हमने डेटाबेस में देखा है स्कूल का नाम कुछ और होता है, क्लस्टर नाम ऐसे लिखा होता है कि कोई ABC लिखा होता है, कोई XYZ, वैलिड नेम्स नहीं मिलते हैं। उन चीजों को अवॉइड करने के लिए और क्लस्टर रिसोर्स सेंटर को आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक ऑप्शन किया गया। उसके बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, जिसको मंडल या तालुक भी बोलते हैं, और एजुकेशनल ब्लॉक, जिसको भी मंडल या तालुक बोलते हैं, उनका नाम देना जरूरी है। उसके बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, म्यूनिसिपैलिटी, सिटी, उसके बाद आप 13 नंबर पे देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 पे फोन नंबर और मोबाइल नंबर की कुछ इंफॉर्मेशन मांगी गई है। STD कोड के साथ स्कूल का लैंडलाइन नंबर वो बताना मैंडेटरी है। शायद आज पूरे भारत में ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जहां पे लैंडलाइन नंबर नहीं होता हो। हो भी सकते हैं, लेकिन अगर सही में वहां पे लैंडलाइन नंबर नहीं है तो उसको खाली छोड़ना है। कुछ अपने मन से कोई घर का नंबर नहीं दे देना किसी का। तो स्कूल का ऑफिस का, स्कूल ऑफिस या रिसेप्शन ऑफिस या जो स्कूल ऑफिस या जो प्रिंसिपल साहब का जो ऑफिस होता है, वहां पे जो लैंडलाइन नंबर है, करेक्ट STD कोड के साथ लैंडलाइन नंबर देना है। हो सके अगर उनका कोई मोबाइल नंबर है तो वो नंबर भी देना है। अदरवाइज इसी में जो 13 में सेकेंड पार्ट है, रिस्पोंडेंट का लैंडलाइन नंबर। देखिए रिस्पोंडेंट कौन हो सकता है डेटा कैप्चर फॉर्मेट का? इन 99.9% केसेस इट इज हेडमास्टर। जो प्रधानाचार्य है वही हेडमास्टर जो होते हैं, वही डेटा कैप्चर फॉर्मेट भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि हेडमास्टर साहब स्कूल में है ही नहीं, तो वहां पे जो सीनियर मोस्ट टीचर होंगे या जो टीचर होंगे, जो रिस्पॉन्सिबल टीचर होंगे, वो ही और शी विल बी ट्रीटेड एज ए रिस्पॉन्डेंट, और वो डेटा कैप्चर फॉर्मेट भरते हैं। तो वहां पे रिस्पॉन्डेंट का लैंडलाइन नंबर STD कोड के साथ, हो सके तो मोबाइल नंबर भी दीजिए। ये मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर
रिस्पॉन्डेंट के और ऑफिस हेड के इसलिए काम आते हैं कि अगर मान लीजिए आपको ब्लॉक लेवल पे जब आप एंट्री कर रहे हो डेटा कैप्चर फॉर्मेट की सॉफ्टवेयर में, उस टाइम अगर कोई दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली हेडमास्टर साहब को या रिस्पॉन्डेंट को कॉल करके डेटा कैप्चर फॉर्मेट में जो आपको कंफ्यूजन है, जो आपको वैल्यूज में कंफ्यूजन है, वो उनसे क्लियरिफाई कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी आप स्कूल का अगर ईमेल आईडी तो वो भी दे सकते हो, रिस्पॉन्डेंट का ईमेल आईडी दे सकते हो, या हेडमास्टर साहब का ईमेल आईडी दे सकते हो। वेबसाइट आपको स्कूल की ही देनी है। अगर कोई टीचर है और उस टीचर ने अगर पर्सनल वेबसाइट बनाई है तो उसका वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं देना। स्कूल की वेबसाइट अगर कोई है तो वो आप यहाँ दे सकते हो वेबसाइट सेक्शन में। उसके बाद हम लोग डेटा कैप्चर फॉर्मेट में पूछते हैं स्कूल कैटेगरी, और ये स्कूल कैटेगरी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू जब डेटा कैप्चर फॉर्मेट प्रिंट होता है तो आपने पिछले साल जो स्कूल कैटेगरी बताई थी वो प्रिंट होती है। लेकिन वो प्रिंट होने से पहले अगर एक स्कूल अपग्रेड हो गया था पिछले साल, मान लीजिए पिछले साल एक स्कूल था प्राइमरी ओनली कैटेगरी 1, अब की बार आपको पता है जब आपने मास्टर लिस्ट में चेक किया तो वो स्कूल वॉज अपग्रेडेड फ्रॉम प्राइमरी टू अपर प्राइमरी। दैट मीन्स पिछले साल उसमें सिर्फ क्लास 1 से 5 तक थी, अब की बार 1 से 8 तक अपग्रेड हो गया। तो आप प्रिंट करने से पहले उसको अपग्रेड करोगे डेटा कैप्चर फॉर्मेट में, और डेटा में जनरेट करने के बाद 2014-15 में उसकी स्कूल कैटेगरी चेंज करोगे, कैटेगरी नंबर 2 कर लोगे उसको, फिर प्रिंट करोगे। तो जब प्रिंटेड डेटा कैप्चर फॉर्मेट हेडमास्टर साहब के पास आएगा तो उसमें पहले से ही स्कूल कैटेगरी अपडेटेड होगी। आपको स्कूल कैटेगरी में से एक ऑप्शन बता दिए, आप मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे नहीं दे सकते। प्राइमरी ओनली, प्राइमरी विद अपर प्राइमरी, प्राइमरी विद अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, upper primary only, upper primary with secondary and higher secondary, primary with upper primary and secondary, upper primary with secondary, secondary only, secondary with higher secondary, या higher secondary only with junior colleges। ये 11 कैटेगरीज हैं हमारे पास। आप जब लिस्ट में देखते हो तो आपको लास्ट कोड नंबर 11 मिलता है। हमारे पास एक्चुअली 11 कैटेगरीज नहीं है, 10 कैटेगरी। हमारे पास 10 स्कूल कैटेगरी नंबर 9 कोई भी नहीं है इसमें। तो इसलिए हमारे पास 10 स्कूल कैटेगरीज हैं, जिनमें से आपको एक चूज करनी है स्कूल की एक्चुअल कैटेगरी के बेस पे। स्कूल कैटेगरी के बेस पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसमें लोएस्ट क्लास और हाईएस्ट क्लास के बारे में पूछा जा रहा है। लोएस्ट क्लास का मतलब है जिस विद्यालय का डेटा कैप्चर फॉर्मेट भरा जा रहा है उसमें लोएस्ट क्लास जिसमें पढ़ाई की जा रही है वो कौन सी, और हाईएस्ट क्लास जिसमें पढ़ाई की जा रही है वो कौन सी। तो लोएस्ट क्लास और हाईएस्ट क्लास, अगर प्राइमरी ओनली स्कूल है तो लोएस्ट क्लास कैन बी 1 एंड हाईएस्ट क्लास कैन बी 4 और 5 एज पर द स्कूल्स एजुकेशन साइकिल, प्राइमरी एजुकेशन साइकिल। हालांकि आरटी आने के बाद प्राइमरी एजुकेशन साइकिल इज 1 to 5, upper primary is 6 to 8, and secondary is 9th and 10th, higher secondary is 11 and 12। अगर प्राइमरी ओनली है तो आप कैटेगरी 1 बताएंगे, प्राइमरी विद अपर प्राइमरी क्लास 1 to 8 है तो आप कैटेगरी 2 बताओगे। अगर प्राइमरी विद अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी मतलब 1 से 12 तक है तो आप कैटेगरी 3 बताओगे। अगर कैटेगरी 4 बताते हैं तो उसका मतलब है क्लास 6 to 8 है। अगर कैटेगरी 5 बताते हो तो उसका मतलब है क्लासेस 6 to 12 है, अपर प्राइमरी विद सेकेंडरी हायर सेकेंडरी। अगर कैटेगरी 6 बताते हो तो उसका मतलब है कैटेगरी प्राइमरी विद अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी 1 से 10 तक है। इस तरह से आप स्कूल कैटेगरी देखने के बाद लोएस्ट क्लास हाईएस्ट क्लास की इंफॉर्मेशन दें। उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल इज मैनेज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए कोड 1, ट्राइबल और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए कोड 2, प्राइवेट एड लोकल बॉडी के लिए कोड 3, प्राइवेट एडेड इज कोड 4, प्राइवेट अनएडेड इज कोड 5, अदर्स। यहाँ पे अदर्स का मतलब है जो कोड्स, जो मैनेजमेंट के कोड, मैनेजमेंट 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 97, 98 में नहीं है, उनके अलावा का मतलब है
जितने कोड यहाँ पे हमने मैनेजमेंट के दिए उनके अलावा अगर आपके पास कोई मैनेजमेंट है, आपके यहाँ पे कोई स्कूल किसी अलग तरह की मैनेजमेंट से मैनेज किया जा रहा है, तो वो कोड यहाँ पे आता है। ऑल्दो 99.9% अदर्स में कोई भी स्कूल नहीं आना चाहिए। आप डाइस में अगर देखो, आपके स्टेट लेवल पे अगर आप देखिए तो फॉर एग्जांपल गुजरात में कितने स्कूल्स ऐसे होंगे जो अदर मैनेजमेंट में आते हैं। अदर मैनेजमेंट आने का मतलब होता है कि रेस्पोंडेंट इज नॉट कॉन्फिडेंट कि उसकी स्कूल का मैनेजमेंट क्या है। ऐसा हो नहीं सकता। नहीं सर, हम केजीबी जो है वो पहले इसमें हम लेते हैं अभी। देखिए सिर्फ केजीबीवी मैनेजमेंट नहीं है, केजीबीवी स्कूल मैनेजमेंट नहीं है, केजीबीवी एक स्कीम है। हाँ, केजीबीवी एक स्कीम है, इसीलिए हम अदर में डालते हैं। उसका मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हैं। तभी मैं कह रहा हूँ कि जो मैनेजमेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है उसके लिए आप यहाँ पे डाल देते हो। लेकिन उसके लिए अगर हम एक ऐसा काम करें, अगर आपको लगता है कि केजीबीवी मैनेजमेंट में आपको चाहिए, आप एक नया कोड बनाओ उसके लिए। ओके, आप उसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 97 98 इसके अलावा क्या कोड बनाओगे? आप एक 10 नंबर कोड बनाओ। 10 तो कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमएसबी। हम 9 बना सकते, 9 नहीं बना सकते, 11 बना सकते। आप 11 बनाओ। आप अपने लेवल पे एक 11 नंबर कोड बनाओ, उसमें लिखो कोड का नाम केजीबीवी मैनेजमेंट का नाम। आप यहाँ पे 11 नंबर डालो और उसका पेरेंट बताओ। पेरेंट मीन्स मैनेजमेंट जो आपने 11 नंबर बनाई वो किसके अंदर आता है? अब केजीबीवी किसकी स्कीम है? सर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। आप उसका जब आप डिफाइन करोगे, 11 नंबर आपने बनाया केजीबीवी मैनेजमेंट, आप उसका पेरेंट बताओ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। होगा क्या? जब डेटा ये आपके लेवल पे, तो आपको जब आप अपने लेवल पे डेटा कैप्चर फॉर्मेट प्रिंट करने के बाद जब डेटा एनालाइज करोगे बाद में, ऐसे जब आप अपना डेटा एनालाइज करोगे और आपने 11 नंबर पे केजीबीवी लिया होगा, तो आपको 11 नंबर की रिपोर्ट भी मिलेगी कि आपके कितने स्कूल्स केजीबीवी में, कितने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के, कितने ट्राइबल वेलफेयर के। जब वो डेटा नेशनल लेवल पे हमारे पास आएगा, हम पूरे इंडिया का डेटा जब मर्ज करेंगे, आपके स्टेट का डेटा मर्ज करेंगे, हम 11 नंबर को उसके पेरेंट में मर्ज करेंगे। ठीक है, उसका पेरेंट होगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। हमारे पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्कूल्स आएंगे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के। आप अपने लेवल पे उसको 11 नंबर में ट्रीट करोगे। पर हमें भी अगर, क्योंकि 11 नंबर जो है वो गवर्नमेंट में ही आएगी केजीबी, तो हम भी यहाँ पे ये कर सके कि उसका पेरेंट जो है वो एक ही है, तो 1316 हम वही करो। आप क्या करोगे? आप 11 नंबर एक नया डिफाइन करो और उस 11 नंबर का पेरेंट 1 डिफाइन करो। ठीक है सर, वो आप ही डिफाइन करके दोगे। आप देखो, आप अगर उसको पेरेंट, आप स्कूल आप अगर 11 नंबर का मैनेजमेंट नया बनाते हो और उसका पेरेंट अगर 2 डिफाइन कर दोगे, तो हमें वो 2 में मिलेगा। हमें जो डेटा मिलेगा आपका, जो आपने पेरेंट डिफाइन किया होगा, हमें वो मिलेगा। चाहे 1 डिफाइन करो, चाहे 2 डिफाइन करो, वो आपके स्टेट लेवल का डिसीजन। ओके, इसीलिए अदर्स में कम से कम स्कूल आने चाहिए, अदर मैनेजमेंट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आप देखिए, वहां पे हमने कहते हैं डिस्टेंस ऑफ स्कूल इन किलोमीटर्स फ्रॉम नियरेस्ट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल। दिस क्वेश्चन इज ओनली फॉर एलिमेंट्री स्कूल। ये क्वेश्चन पिछले साल डाला गया था डेटा कैप्चर फॉर्मेट में, और इसमें क्योंकि ज्यादा इस क्वेश्चन पर हम पिछली बार एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे,
या ये कहिए कि लास्ट मोमेंट पे ये डेटा कैप्चर फॉर्मेट में ऐड हुआ था एमएचआरडी की तरफ से, और इस पे बहुत क्लैरिटी लोगों तक नीचे तक हेडमास्टर साहब तक नहीं पहुंची थी, तो ये कॉलम ब्लैंक आया था बहुत सारे डेटा कैप्चर फॉर्मेट्स में। इसमें पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम प्राइमरी स्कूल टू नियरेस्ट गवर्नमेंट एडेड अपर प्राइमरी स्कूल। अगर मान लीजिए ये स्कूल जिसका डेटा कैप्चर फॉर्मेट भरा जा रहा है, अगर ये प्राइमरी स्कूल है, तो इसका नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट एडेड अपर प्राइमरी स्कूल कितनी दूर है, आपको किलोमीटर में डिस्टेंस बताना। अब मानते हैं कि मान लीजिए एक स्कूल है आपके स्टेट में, एक डिस्ट्रिक्ट में, एक ब्लॉक में, एक विलेज में एक स्कूल है, प्राइमरी ओनली स्कूल है, लेकिन उसी स्कूल की बाउंड्री वॉल के अंदर, उसी स्कूल के कैंपस में अलग बिल्डिंग में अपर प्राइमरी स्कूल चल रहा है, तो 0 किलोमीटर नहीं हो सकता वो। दोनों स्कूल अलग अलग है, प्राइमरी स्कूल अलग है और अपर प्राइमरी स्कूल अलग है। अगर दो मैनेजमेंट से मैनेज है, जैसे हमने पहले कहा, तो एक ही कैंपस में आप वहां पे 0 नहीं लिखोगे, आप वहां पे 999 लिखोगे। ओके, 999 लिखने का मतलब है, उससे हमें पता चलेगा कि कितने ऐसे स्कूल हैं पूरे स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में या ज्योग्राफिकल एरिया में जहां पे प्राइमरी से नियरेस्ट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड अपर प्राइमरी स्कूल उसी कैंपस में। इसका फायदा क्या है? इस क्वेश्चन का फायदा यह है, जिससे हमें ये पता चल पाएगा कि प्राइमरी सेक्शन क्लास 5 पास आउट करने के बाद लड़के और लड़कियों को, मतलब बच्चों को, कितनी दूर अपर प्राइमरी स्कूल ज्वाइन करने के लिए जाना पड़ेगा। और या इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर आपका स्टेट चाहे कि कितने अपर प्राइमरी स्कूल किस किस लोकेशन पर खोलने हैं, विदिन 1 किलोमीटर खोलने हैं, तो कितने स्कूल्स ऐसे हैं जहां पे प्राइमरी से अपर प्राइमरी, गवर्नमेंट एडेड अपर प्राइमरी स्कूल या गवर्नमेंट एडेड प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल अभी भी 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में नहीं है। वो चीज यहां से निकल है, इसलिए ये क्वेश्चन है यहां। तो आपको ये करेक्ट बताना है और राउंड फिगर्स में बताना। डेसिमल में वैल्यूज यहां पे नहीं डाल सकते हो। आप ये नहीं डाल सकते हो कि 2.7 किलोमीटर है। अगर 2.7 है तो आप उसको 3 लिखिए, 2.1 है आप उसको 2 लिख सकते हो। दैट मीन्स अगर 2.5 से नीचे है तो 2 लिख सकते हो, 2.5 से ऊपर है तो 3 लिख सकते हो, लेकिन डेसिमल में नहीं लिख सकते। ठीक है सर। उसके बाद तो उस कैंपस में मतलब 0.5 है, पर मैं तो 0 है। सेकेंड, उसी का सेकेंड पार्ट है, फ्रॉम अपर प्राइमरी टू नियरेस्ट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड सेकेंडरी स्कूल। ये क्वेश्चन भी एलिमेंट्री डेटा कैप्चर फॉर्मेट में ही प्रिंट होगा, या तो 1 to 8 में प्रिंट होगा, या तो ये 1 to 8 में प्रिंट होगा, या 1 to 12 के स्कूल में प्रिंट होगा। ये क्वेश्चन 9 to 12 वाले डेटा कैप्चर फॉर्मेट में प्रिंट नहीं होगा। ओके, 9 to 12 में प्रिंट करके फायदा नहीं ना, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि अपर प्राइमरी से नियरेस्ट गवर्नमेंट सेकेंडरी या गवर्नमेंट एडेड सेकेंडरी कितनी दूर है। तो अपर प्राइमरी स्कूलों से पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ध्यान से अपने नीचे लेवल पे जब आप ट्रेनिंग दोगे कैस्केड मोड में, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक, ब्लॉक से क्लस्टर, जब आप ट्रेनिंग दोगे तो इन क्वेश्चंस को बहुत क्लियरली आपको बताना, क्योंकि इन्हीं 2 क्वेश्चंस के बेस पे नए स्कूल्स अप्रूव करने के लिए आप प्लान बनाते हो, जिसके लिए आपको फंडिंग मिलती है। आप बताते हो कि नेक्स्ट अपर प्राइमरी स्कूल कितनी दूर खोलना है, या कितने अपर प्राइमरी स्कूल खोलना है, या नेक्स्ट सेकेंडरी स्कूल कितनी दूर खोलना है, या नेक्स्ट सेकेंडरी स्कूल कितनी दूर है और कहाँ पे खोलना है। उनके लिए 2 क्वेश्चन है। कैटेगरी 1 to 8 है क्लासेस या 6 to 8? हाँ, 6 to 8 में और 1 to 8 वाले में ये प्रिंट होगा।
अपर प्राइमरी, हाँ जी, जहाँ पे अपर प्राइमरी सेक्शन है वहीं पे ये प्रिंट होगा सर। हाँ जी, जहाँ पे अपर प्राइमरी के साथ सेकेंडरी है वहाँ पे क्वेश्चन प्रिंट नहीं होगा। ओके, ओनली अपर प्राइमरी सेक्शन से 1 to 8 है तो ये आएगा, अगर 9 to 12 है तो नहीं आएगा। 9 to 12 में नहीं आएगा, 6 to 12 में नहीं आएगा, लेकिन 6 to 10 या 6 to 10 में डीसीएफ कौन सा प्रिंट होता है? 1 to 12 वाला पूरा, उसमें पूरा आएगा। लेकिन वहां पे आपको क्या लिखा है? देखो क्वेश्चन में लिखा है फॉर एलिमेंट्री सेक्शन ओनली। देखिए अगर एक स्कूल है 6 से 10, हम उससे क्या पूछ रहे कि आपका नियरेस्ट गवर्नमेंट एडेड सेकेंडरी स्कूल कितनी दूर है? अरे भैया वो तो खुद ही स्कूल 6 से 10 है, तो उससे सेकेंडरी क्या पूछना है? पर सर ये अभी इसमें जो नेक्स्ट आगे का जो ये वाला प्राथमिक शाला से नजदीकी प्राइमरी से अपर प्राइमरी का डिस्टेंस, हाँ जी, तो यहाँ पे गुजरात के केस में हमारे में ज्यादातर स्कूल कंपोजिट स्कूल ही है, मतलब प्राइमरी अपर प्राइमरी ही है। तो ये जो है तो वहाँ पे हमें सब जगह पे 999 ही डालना है। वहां पे देखो अगर आपके गुजरात में अगर मान लीजिए ज्यादातर स्कूल 1 to 8 है, यस सर, और एक ही कैंपस में है, हाँ सर, तो 999 आएगा, 999 ही आएगा ज्यादातर केसेस में। लेकिन अगर ऐसा कोई स्कूल है चाहे वो एक ही कैंपस में हो और उसका है स्कूल 1 to 8, लेकिन प्राइमरी का सेक्शन और अपर प्राइमरी का सेक्शन, मतलब प्राइमरी स्कूल एक ही कैंपस में है, प्राइमरी स्कूल अलग मैनेजमेंट का है और अपर प्राइमरी स्कूल अलग मैनेजमेंट का है, तो आपको 2 डीसीएफ भरवाने। हाँ सर, तो 2 ही डीसीएफ, 2 डीसीएफ। तो आप पहला जो प्राइमरी स्कूल होगा उससे तो पूछोगे कि आपका नियरेस्ट गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कितनी दूर है, वहां पे भी आप बताओगे 999। ओके, तो आपके केसेस में ज्यादातर में 999 आएगा पहले क्वेश्चन में। फिर आप बताओगे सेकंड क्वेश्चन है अपर प्राइमरी स्कूल से नियरेस्ट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड सेकेंडरी स्कूल कितनी दूर है। ये क्लियर है दोनों क्वेश्चंस? ठीक है। इसको अगर इनकंसिस्टेंसी के मॉड्यूल में भी डाल दे कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर स्कूल है, लेवल पे आएंगे, अभी पहले अगर डेटा कैप्चर फॉर्मेट में देखेंगे वो डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर स्कूल इज अप्रोचेबल बाय ऑल वेदर रोड्स, यस या नो। इसका मतलब है क्या जो स्कूल है जो डेटा कैप्चर फॉर्मेट भर रहा है वो हर मौसम में वहां तक पहुंचा जा सकता है। इसका ये मतलब ये कि क्या वहां पे पक्की सड़क है, कार जा सकती है कि नहीं, गाड़ी जा सकती है कि नहीं, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है क्या हर मौसम में चाहे बारिश हो या गर्मी हो सर्दी हो वहां पर पहुंचने का, उस स्कूल तक पहुंचने का प्रॉपर रास्ता है कि नहीं। रास्ता या रोड होने से बेनिफिट क्या है? हेडमास्टर साहब डेली स्कूल में पहुंच सकते हैं या बच्चे डेली स्कूल में पहुंच सकते हैं। अब मान लीजिए एक स्कूल है, बीच में नदी बढ़ती है, बीच में नदी है, फ्लड के टाइम पे या बारिशों के टाइम पे मान लीजिए वो भर जाती है, प्रॉपर रास्ता नहीं है, बाइक उस पर पुल नहीं है, तब आप लिखोगे नो यहाँ पे इस क्वेश्चन में। अगर ऐसा कोई मेजर हिंड्रेंस है स्कूल तक पहुंचने में, अदरवाइज आप स्कूल तक पहुंचने के लिए वेदर स्कूल इज अप्रोचेबल इन ऑल वेदर रोड, हर मौसम में वहां तक पहुंचा जा सकता है, इसके बारे में बताना है जैसे हम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, वहां पे ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल फॉर डाइस। जब से हम यूनिक स्कूल कोड क्रिएट करने का जो कंसेप्ट है दैट इज बेस्ड ऑन दिस वेरिएबल ओनली। हम हर साल इनकंसिस्टेंसी मॉड्यूल में, रिपोर्ट्स में, प्रेजेंटेशंस में बताते हैं कि स्कूल अपना ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बदल देता है। वो हो नहीं सकता, कभी भी बदल नहीं सकते, बदलना नहीं चाहिए। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्कूल इज लाइक अ डेट ऑफ बर्थ ऑफ अ स्टूडेंट।
और डेट ऑफ बर्थ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। अगर कोई डेट ऑफ बर्थ आपकी सिर्फ एक ही केस में बदल सकती है कि आपने ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और पेपर्स में कुछ और लिखो। अदरवाइज जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है आपकी, दैट डेट ऑफ बर्थ एंड ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल इज सिमिलर। दोनों उतने ही इंपॉर्टेंट है। स्कूल ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल उतना इंपॉर्टेंट है स्कूल की हिस्ट्री में जितना डेट ऑफ बर्थ हमारी हिस्ट्री में। ये जो 4 डिजिट का ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट दोगे, इस ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के बेस पे ही यूनिक स्कूल कोड क्रिएट होगा। यूनिक स्कूल कोड उन स्कूल्स का क्रिएट नहीं होगा जिसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1800 से पहले का है या ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट गलत है। यहाँ पे गलत का मतलब है हमने डाइस में ऐसे स्कूल ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट भी देखे जो 3 डिजिट में आए, वो नहीं हो सकता। तो 4 डिजिट का वैलिड ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट आपको यहां पे डालना है। जिन स्कूल्स का ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा उन स्कूल्स का कोड, यूनिक कोड जो नया बना रहे हैं वो क्रिएट नहीं होगा। उसके बाद ईयर ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ स्कूल, एलिमेंट्री लेवल, secondary level and higher secondary level. There can be a school which is elementary. तो आप एलिमेंट्री का ईयर ऑफ रिकॉग्निशन बताएंगे, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी नहीं बताएंगे। सेकेंडरी हायर सेकेंडरी प्रिंट भी उन्हीं केसेस में होगा जहां पे ये सेक्शंस अवेलेबल एप्लीकेबल होंगे सॉफ्टवेयर में, डीसीपी। अगर एक स्कूल 1 से 10 है तो वहां पे एलिमेंट्री और सेकेंडरी प्रिंट होगा। अगर एक स्कूल 1 से 12 है तो एलिमेंट्री सेकेंडरी हायर सेकेंडरी प्रिंट होगा। अगर सिर्फ एलिमेंट्री स्कूल है तो एलिमेंट्री प्रिंट होगा। सिर्फ सेकेंडरी है तो सिर्फ सेकेंडरी प्रिंट होगा। सिर्फ सेकेंडरी हायर सेकेंडरी है तो दोनों प्रिंट होंगे। सिर्फ हायर सेकेंडरी तो हायर सेकेंडरी प्रिंट। ईयर ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ स्कूल, ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स जिस दिन ओपन होते हैं वही उनका ईयर ऑफ रिकॉग्निशन होता है। तो आप यहाँ पे ईयर ऑफ रिकॉग्निशन क्लियरली मेंशन करेंगे। उसके बाद ईयर ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल, ईयर ऑफ रिकॉग्निशन और ईयर ऑफ अपग्रेडेशन में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्कूल वॉज क्रिएटेड इनिशियली इन 1992. This is year of establishment. This is a government school, so it was recognized on the same day. So year of recognition is 1992. But it was a primary only school. 1 से 5 ही चलता था। उसके बाद वो स्कूल 1996 में अपग्रेड हो गया प्राइमरी टू अपर प्राइमरी। सो यू हैव टू स्पेसिफाई प्राइमरी टू अपर प्राइमरी लेवल ईयर ऑफ अपग्रेडेशन एज 1996। इस तरह से